Hello everyone, welcome to Oliver. My name is Varsha Dhiman, and in this particular session we are going to discuss about ICAR. तो अभी recently, that is on 16th of July, ICAR ने 97th Foundation Day celebrate किया था. तो on this occasion ICR की क्या-क्या की achievements रही है in the 2024-25 year, or ICR क्या है, how it works, and what are the important initiatives that are taken by ICR for the overall development of agriculture of the country. So we are going to discuss about all these things here in this particular session. तो ये बहुत ही important है for all those aspirants who are targeting the bar grade A examination for the year 2025. Okay, so let's start our discussion. So before going further, aspirants, आप लोग Oliboard की application install कर लीजिए and register yourself there so that you will get the PDFs of all the YouTube classes. As well as there are so many batches available on the application of Oliboard. You can take the help of these batches for your better preparations. And you can connect with me on my Telegram, Varsha Dhiman, where you will get the notifications of the classes as well as other informations also. Okay. Now, aspirants, as today is 19th of July, this offer is valid till today only. So, if you want to prepare for any regulatory exam or any other exam, okay, what you are getting 60% off on all the subscriptions, as it is big birthday party. Okay, so aspirants, use the code BDAY and get the 60% discount on all the batches and start your preparations with the team of Oliver. And this is a NABARD Grade A latest batch. We are taking live classes in this batch. Be the part of this batch and start your preparations with us. Okay, so let's talk about ICR now. What is ICR and how it works? Let's talk about it. So ICR stands for Indian Council of Agricultural Research. Okay, and recently, on 16th of July 2025, ICR celebrated its 97th Foundation Day. Okay, और जब आप कोई ऐसे डे फाउंडेशंस डे सेलिब्रेट करते तो विद दैट आप जितने भी आपके ने उस ईयर में इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, माइलस्टोन्स को अचीव किया है और हाइलाइट्स कुछ आपने अचीव किए हैं, तो वो आप मेंशन करते हो. तो सिमिलरली आईसीआर ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, और साथ साथ में फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कि कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है उसको टाइमली फूड एंड न्यूट्रिशनल facilities available. So ICR always have a very big role to play in our agriculture sector. ठीक है, अब ICR के बारे में बात कर लेते हैं कि what is it? So it is a apex body. इसको आप apex body or we can also say it is a premier institution. Premier institution, how it works for coordinating, guiding, managing agricultural research and education in areas. ठीक है, agriculture areas में, horticulture, animal sciences, fishery areas में जो भी research है और जो भी activities हैं, basic processes हैं, उन सभी को coordinate करना, guide करना and manage करना. ठीक है, and it was established on 16th of July 1929. Okay, so in the year 2029, ICR will be of 100 years. 100 years हो जाएंगे. ठीक है, 100 ईयर तो वो तब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. अभी 97th फाउंडेशन डे पे what are the important achievements that ICR achieve, or ICR what kind of जो भी milestones ICR ने 2024 में 2024-25 में achieve किए हैं वो हम mention करेंगे. ठीक है, so it's a registered society under the Societies Registration Act 1860. And where is its headquarter? Is it in New Delhi? Okay, ICR का headquarter जो है वो New Delhi में है. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, क्या फंक्शंस आईसीआर परफॉर्म करता है, तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन. ओके, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. ICR is among the largest national
agriculture systems globally with 113 research institutes. ICR के अंदर 113 research institutes हैं and 74 agriculture universities जो all over country के across है, they all comes under the ICAR. ठीक है, और साथ में it is largest national agriculture system. Okay, next is अब क्या की highlights रहे ICR के? What are the highlights of ICR's role in ensuring food and nutritional security? So firstly, let's talk about agriculture growth and food security के related. ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रहे हैं आईसीआर के? तो आईसीआर ने हमारा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद जब when the population was about to increase, ठीक है, उस enormously, तो उस टाइम पे फूड स्कैरसिटी की प्रॉब्लम थी, तो आपका 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया. ठीक है, आपके फूड प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए हाई यील्डिंग वेराइटीज को इंट्रोड्यूस किया गया, एज वेल एज केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि इतना हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑब्टेन कर सके कि हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड वी विल बी एबल टू फुलफिल. ठीक है, तो आईसीआर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे. ये जो वेराइटीज उस टाइम पे रिलीज हुई थी और जो भी प्रोटोकॉल्स उस टाइम पे लिए गए थे, they were directly or indirectly associated by ICAR. ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में, फूड सिक्योरिटी में, एंड by boosting production of तो food grades of production 6.2x time, horticulture का 11.53 times, fish का 21.61 times, milk का 13.01 times and eggs का 70.74 times from 1950-51 to 2021-20. ठीक है, और उसके बाद अगर हम फॉर द ईयर 2024-25 के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द ग्रोथ एंड अदर थिंग्स इन द ईयर 2024-25, तो इंडिया एवर हाईएस्ट एवर फूड ग्रेन आउटपुट अचीव कर चुका है इन द ईयर 2024-25 and that is 353.95 million tons. So this data is important. You can use this data in framing your answers, descriptive answers में, as well as direct भी questions हो सकते हैं. And India is the largest producer of rice and milk और second largest in wheat, horticulture and fish. ठीक है, तो ये इंडिया के पास अभी different crops में superlative degrees है ना. Next, if we talk about its highlights related to research, excellence and innovation. So if we talk about its highlights related to research, excellence and innovation, तो ICAR ने 679 field crop varieties को release किया. Under this there are 27 bio-fortified varieties. इसमें से 27 जो varieties हैं, they are bio-fortified. और world का first 2 genome edited rice varieties, ठीक है, they were also released by ICAR. ठीक है, जिसके लिए मैंने एक specific session लेके आपको ये पूरा explain किया था. You can go through that particular session which is available on our YouTube channel कि ICAR world में first ऐसा institution बन गया है जिसने 2 genome edited rice varieties को release किया है and contributed 90% to rupees 50,000 crore basmati exports. It also led to 115.3 million ton wheat production, 85% under ICAR varieties and significantly boosted और significantly pulses का और seeds का output production भी ICAR ने इसमें भी काफी contribute किया and now it has also enhanced. ठीक है, so it is about its another important achievement. Next हम बात करते हैं ICAR has taken another efforts on horticulture, fisheries, livestock and engineering sector में भी advancement हुआ है. And what we had observed, ICAR ने 83 horticulture varieties develop की, 2950 plus tons of breeder seeds and 22 lakhs planting material. Other than that, इसने super intensive shrimp farming introduce करा, breeding protocols for 7 fish species, registered 10 livestock breeds, released 2 chicken varieties and deployed
45 new agri machines enhancing on farm efficiency and sustainability. ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेट स्मार्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट इनिशिएटिव. सो व्हाट आर द क्लाइमेट स्मार्ट एंड resource management initiatives taken by ICAR? So if we talk about this, so established, so we took a current affairs session, उसमें मैंने बताया था कि नेशनल सॉइल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी को स्टैब्लिश किया गया है इंडिया में, एंड इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम. जैसे कि हमारे बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं और जो आपके डेटाबेसेस हम स्टोर करके रखते हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स डेटाबेसेस स्टोर करके रखते हैं, तो सिमिलरली हम सॉइल स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी को स्टैब्लिश किया गया है सॉइल स्पेक्ट्रल डेटाबेसेस को स्टोर करके रखोगे, है ना, ताकि आप सोइल की कंडीशन अगर कहीं के आपको क्रॉस चेक करनी है तो दिस विल एक्ट एज अ इजी रेफरेंस मटेरियल, जिसकी हेल्प से आप जान सकेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज प्रिवेलिंग. ठीक है, तो एक तरह से डेटाबेस स्टैब्लिश करा है आईसीआर ने, डेवलप की है 35 गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल्स फॉर 10 क्रॉपिंग सिस्टम्स, promoted agroforestry in Odisha, and innovated a microbial consortium reducing methane emission in rice cultivation by 18%. ठीक है, देखो जो भी हम अगर एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करते हैं, जो आपके राइस पैडी कल्टीवेशन की बात करते हैं, विच इज अ मेजर खरीफ क्रॉप, तो पैडी फील्ड से मीथेन CH4 का एमिशन बहुत ज्यादा होता है, and that is releasing in the atmosphere and causing the greenhouse gas. ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है ये आपकी एक, और ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग को भी कॉज करेगी और नेचर में अदर हार्मफुल इम्पैक्ट भी कॉज करेगी. ठीक है, तो आईसीआर ने एक ऐसा माइक्रोबियल कंसोर्शियम इनोवेट करा है जो मिथेन के एमिशन को रिड्यूस करेगा. तो एक तरह से ये भी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है आईसीआर के लिए इन अवर एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना. नेक्स्ट कैपेसिटी बिल्डिंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन. सो आईसीआर ने इम्प्लीमेंट किया implemented the sixth Dean Committee reports on agricultural education और लॉन्च किया PM वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम. ठीक है, इट अवार्डेड आईसीआर को एशियन फेलोशिप्स एंड ट्रेन स्टाफ अंडर कर्मयोगी जन सेवा. ICAR ने कंडक्ट किया 18.57 लाख फार्मर्स ट्रेनिंग्स, issued 4.19 करोड़ मोबाइल एडवाइजरीज एंड हेल्प किया फार्मर्स को स्टबल बर्निंग को रिड्यूस करने में 80%, बिकॉज स्टबल बर्निंग आपका ड्यूरिंग योर खरीफ क्रॉप हार्वेस्टिंग, जब आपका खरीफ क्रॉप का हार्वेस्ट होगा अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे एक्सेसिवली एयर पॉल्यूशन रहता है, एयर जो क्वालिटी है दैट will be deteriorated to a very high level. तो ICAR ने कुछ ऐसे मेथड सजेस्ट किए जिससे स्टबल बर्निंग जो है वो रिड्यूस हो गया बाय 80%. वो फार्मर्स आपने क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद दे हैव टू प्रिपेयर द फील्ड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, तो उनको इजी टू गो ऑप्शन यही लगता है जो भी स्टबल है उसको बर्न करो, बट उसका एनवायरमेंट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना. तो ICAR हैज टेकन सम स्टेप्स और फार्मर्स को एडवाइजरीज रिलीज किया एंड हेल्प द फार्मर्स कंडक्ट trainings, and now stubble burning is reduced by 80%. ठीक है, another is global collaborations and strategic initiatives. ठीक है, तो ICAR ने देखो whenever you are about to work on a global scale, आपको अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस भी प्रमोट करना, आपको अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो करना है, तो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट पे वर्क करना पड़ेगा. तो ICAR ने with that thought now ICAR has strengthened ties with ASEAN, SAARP, SAARC, G20, Kuwait, Greece, etc. and signed 90 MOUs, Memorandum of Understandings, participated in platforms like Consultative Group or International Agricultural Research and International Center for Agricultural Research in the dry areas. Okay? It also launched transformative programs like the Global Center on Millets, that is Sri Anna, Clean Plant Program, National Gene Bank, Maharishi Initiative, and genome editing in 40 crops, positioning India for the next generation agri resilience. ठीक है, तो ICAR ने बहुत सारी जगह पर
shown the transformative programs and the changes so that the resources will be available for the next generation as well. So ICR is promoting the sustainable agriculture practices with the minimal uses of fertilizers and promoting the natural farming and organic farming. Okay. Now moving further, what are the key initiatives for promotions of agriculture in India? अब इसके साथ देखो, ये तो हमने बात कर लिया क्या हाइलाइट्स है, ठीक है, क्या क्या रोल आईसीआर ने प्ले किया है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए. उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस इज अबाउट क्या की इनिशिएटिव्स लिए गए आईसीआर के द्वारा फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. ठीक है, तो नाउ वी हैव द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम. फार्मर्स को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिल जाता है और फार्मर्स जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर करें अच्छे से पूरा, तो फार्मर्स जो है मनी लेंडर्स के डेब्ट ट्रैप से आउट रहेंगे. तो क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम. क्रॉप इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स की अगर नेचुरल कैलमिटीज या फिर अनप्रडिक्टेबल कुछ सिनेरियोज की वजह से देयर क्रॉप विल फेल एंड द फार्मर्स विल नॉट अबाउट टू गेट the output they deserve. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो कवर करते हैं क्रॉप लॉस को फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट. उसके अलावा रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो वेदर रिलेटेड अगर कोई रिस्क आ रही है उसको कवर करने का काम है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. Okay, mechanization and infrastructure. So submission on agriculture mechanization, submission on agriculture mechanization. तो फार्मर्स के लिए, ठीक है, फार्मर्स के लिए अगर उनके पास सारी गुड फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी, उनके पास अच्छी मशीन्स अवेलेबल रहेंगी, तो फील्ड ऑपरेशंस जो परफॉर्म करेंगे दे विल बी मोर एफिशिएंट. तो आईसीआर ने अंडर द सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन प्रमोट करा है इक्विपमेंट्स ट्रेनिंग्स हो गया, फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स, सो दैट द फार्मर्स विल कंफर्टेबल विद यूजिंग दिस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स इन देयर एग्रीकल्चर फील्ड. ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड व्हाट इट डू, इट प्रोवाइड्स लोन्स interest subvention up to 3% for post harvest infrastructure capped at 9% for loans up to rupees 2 करोड़. ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या इनिशिएटिव लिया गया. तो रिसेंटली वी टॉक अबाउट, हमने बात किया था यूनियन बजट 2025-26 में कि मखाना प्रोडक्शन को हमें प्रमोट करना है क्योंकि मखाना इज अ वेरी न्यूट्रिशनल आपका फूड कॉमोडिटी है. तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना developed Makhana processing machines and supported 24 enterprises. प्रोजेक्ट विस्तार भी एक इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए इंडिया में, जो आईसीआर जिसमें मेन रोल प्ले करता है. दैट यूनिफाइड डिजिटल एग्री इकोसिस्टम इंटीग्रेटिंग एआई चैटबॉट्स एग्री स्टैक रियल टाइम फार्मर्स फीड. ठीक है, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा दैट इज GKMS. तो व्हाट इट डू, ये फार्मर्स को वेदर रिलेटेड एडवाइजरीज देती है 130 एग्रोमेट्स की हेल्प से, फील्ड यूनिट्स की हेल्प से, एप्स लाइक मेघदूत एंड मौसम की हेल्प से. ठीक है, उसके अलावा ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फार्मिंग रिलेटेड क्या इनिशिएटिव लिया गया है फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, दैट इज परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर्स को प्रमोट करने के लिए पर क्रॉप मोर क्रॉप ये प्रोवाइड करता है सब्सिडीज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को माइक्रो इरिगेशन के लिए जैसे कि ड्रिप है, स्प्रिंकलर सिस्टम्स है, उन सब के लिए. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो राष्ट्र इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड डिसेंट्रलाइजेशन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लॉन्च की गई. साथ में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी ये क्या करती है, डिसेंट्रलाइज करती है, स्ट्रेंथन करती है डिसेंट्रलाइज्ड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज. ठीक है, अनदर इनिशिएटिव है कलेक्टिवाइजेशन एंड मार्केट एक्सेस. तो अभी क्या है हमारे पास, फार्मर्स
प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, उनका फॉर्मेशन 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी है, जिसमें फार्मर्स हु आर हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स, हु आर वर्किंग ऑन द सेम थिंग, उनका एक ग्रुप होगा। एंड वो आपस में, देखो अगर आपके पास ऐसे हेल्प ग्रुप्स अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वहीं से ही निकल के आ जाता है। तो आईसीआर ने ये भी एक एफपीओस का भी इनिशिएटिव लिया, एफपीओस के पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी को लेते हुए प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है, जिसमें 3,000 रुपीज पर मंथ पेंशन पोस्ट एज 60 ईयर्स के बाद की एज में फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र हैं। स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ के लिए 7 डे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स में। ठीक है, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम है, जिसमें स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग, इंटर्नशिप एंड रूरल एक्सपोजर दिया जाता है एग्री स्टूडेंट्स को। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी आर वर्किंग टू बूस्ट दिस सेक्टर। ठीक है, आईसीआर ने ये सब डेवलपमेंट्स किए हैं द लास्ट ईयर, इसलिए आईसीआर फाउंडेशन डे पे ये सब चीजें आपकी हाईलाइट करके बताई गई हैं। और इसलिए भी हमने डिस्कस किए बिकॉज देयर आर द चांसेस दैट यू विल हैव डायरेक्ट क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प कर सकती है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के फॉर्मेशन। ठीक है, और एस्पिरेंट्स एट द एंड ऑल्सो आई वांट टू टेल यू कि बिग बर्थडे पार्टी सेल है, 60% ऑफ आपको मिल रहा है सभी बैचेस पे। अगर आप नबार्ड को टारगेट करें तो नबार्ड के बैच में भी आपको 60% ऑफ मिल रहा है। दिस इज अ बैच विच इज अवेलेबल ऑन द स्टोर। Be the part of this batch and start with preparations with us. Okay, bye bye and all the very best.